A very good morning to all of you. Myself, Dr. Rajendra Rao, working as Assistant Professor in GS College of Commerce, Wardha. Due to COVID-19 situation, it is not possible to conduct our regular classes physically. So we will provide you online teaching, and this lecture is the part of that online teaching. Today, I will teach you become 5th sem. Name of the subject is Financial Accounting, which is called as Financial Accounting 4. First we will discuss the syllabus, paper pattern, and after that we will go through one by one unit. So we will discuss first the syllabus of Financial Accounting. It is not the complete syllabus. Some content is also included, but I will take only the heading. I will provide you syllabus through mail. So I will only discuss the topic of that particular syllabus. Unit 1, it includes amalgamation and absorption of companies. In that unit, meaning of amalgamation is included, characteristics of amalgamation, needs of amalgamation, purpose of amalgamation is included. Also includes the meaning of absorption, what is absorption, what are the needs of absorption. In this unit, theory question is also asked and some problem is also asked. In second unit includes reconstruction of companies. In this unit is also some theoretical part is there, that is the meaning of reconstruction, purpose of reconstruction, theory and numerical, both questions are asked. In third unit, it's a big unit, it includes accounts of public utility companies, which is also called as double accounting system. In that system, we have electricity company final account, we have gas company final account, we have water supply company final account, and some basic theories. Theory and numerical, both the questions are asked. In unit 4, we have the valuation of share. In this unit, that is the meaning of valuation of shares, purpose of valuation, factors affecting the valuation of shares, and methods of valuation of shares. So in this 4 unit, we have here amalgamation and absorption of companies. Second unit is reconstruction of companies. Third unit is the accounts of public utility concern, and fourth unit is valuation of shares. So this is your syllabus of BCom 5th sem. We will see the question paper pattern, so you can have a brief idea regarding unit wise allocation of marks. So question paper pattern is unit 1, question 1, unit 1. A, theory 8 marks, B, problem 8 marks, or C, problem 16 marks. You have to solve either this or this. In unit 2, same pattern is there. Question 2, unit 2. A, theory 8 marks, B, problem 8 marks, or C, problem 16 marks. You have to solve either this or this. This is the second unit, second question. Question 3, unit 3. Again, theory 8 marks, problem 8 marks, or problem 16 marks. You have to solve either this or this. In question number 4, unit 4, again the same pattern is there. Theory 8 marks, problem 8 marks, or C, problem 16 marks. You have to solve either this or this. In question number 5, there are 4 questions, 4 marks each,
there is no option, it is a compulsory question. Unit 1 problem 4 marks, Unit 2 problem 4 marks, Unit 3 problem 4 marks, and Unit 4 problem 4 marks. So this is the paper pattern which clearly indicates that theory problem और प्रॉब्लम आप एक तो ए बी सॉल्व कीजिए या फिर सी में पूरा जो प्रॉब्लम है 16 मार्क्स का वो सॉल्व कीजिए। यूनिट 2 में भी वैसा ही है कि आप थ्योरी सॉल्व कीजिए 8 मार्क की, 8 मार्क का न्यूमेरिकल। अगर आप ये नहीं करते हैं तो और में जो सी है आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए 16 मार्क का। यूनिट 3 में भी थ्योरी 8 मार्क्स की है, प्रॉब्लम 8 मार्क्स का है। अगर आप ये नहीं छुड़ाते हैं तो आप सी छुड़ाइए 16 मार्क्स का प्रॉब्लम। यूनिट 4 में भी वैसे थ्योरी 8 मार्क्स की है, प्रॉब्लम 8 मार्क्स का है। अगर आप ये दोनों ही छुड़ाते हैं तो आप प्रॉब्लम छुड़ाइए 16 मार्क्स का। 5वें यूनिट में इट इज क्लियरली मेंशन दैट प्रॉब्लम 4 मार्क्स, इसमें कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेंगे, जब अपन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें से ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। अगर कुछ बचते हैं तो सेपरेटली उसको ले लेंगे। लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा है कि यूनिट 1 में से प्रॉब्लम 4 मार्क का आएगा 5वें क्वेश्चन में, यूनिट 2 में से प्रॉब्लम 4 मार्क का आएगा, इसमें थ्योरी आएंगी नहीं। यूनिट 3 में 4 मार्क का प्रॉब्लम है और यूनिट 4 में 4 मार्क का प्रॉब्लम है। अगर आप पूरा पेपर पैटर्न देखते हैं और आपको लगता है कि मेरा न्यूमेरिकल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट माई न्यूमेरिकल साइड, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे थ्योरी नहीं सॉल्व करना है, तो इसमें ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आप जो है वो 16 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो है यूनिट 2 में आप 16 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यूनिट 3 में अगर आपको थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करना है तो आप 16 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यूनिट 4 में जो है आप 16 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे ही 5वीं यूनिट में ये चारों प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम्स है, कोई भी इसमें थ्योरी नहीं है। मतलब इन एंड ऑल अगर 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क का अगर पेपर है, तो ये 80 मार्क का पेपर भी अगर आप ये ऑप्शन पहले छोड़ देते हैं तो आपको प्रॉब्लम मिल सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 80 इसमें ये सब्जेक्ट में मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, ऑप्शन आपके पास में है। इसका मतलब ये नहीं है कि थ्योरी करना नहीं है या थ्योरी छुड़ाना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे ही नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू लर्न द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर सो वी कैन क्लियर अवर कॉन्सेप्ट। अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे और वो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप वो प्रॉब्लम छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पहले ये ध्यान में रखना है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है 4 यूनिट की कि 4 यूनिट में कौन से चैप्टर है, इसमें कंटेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो सिलेबस जो है वो आपको बाय मेल भेज दिया जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपको कौन से चैप्टर करने हैं। तो उसमें अमलगमीशन है, एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज थोड़ा बड़ा चैप्टर है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है। उसके बाद में अकाउंट्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज, इसमें 3 टाइप के हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फाइनल अकाउंट है, गैस कंपनी फाइनल अकाउंट है, वाटर सप्लाई कंपनी फाइनल अकाउंट है। ये तीनों फाइनल अकाउंट है। कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये तो इलेक्ट्रिसिटी पे आएगा, गैस कंपनी पे आएगा, वाटर सप्लाई पे आएगा, ये कोई भी फिक्स नहीं है, इसलिए ये सभी आपको करना है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फाइनल अकाउंट भी करना है, गैस कंपनी फाइनल अकाउंट भी करना है, वाटर सप्लाई कंपनी फाइनल अकाउंट भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी पर भी आ सकता है। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एज कंपेयर टू दीज 3 चैप्टर्स वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज स्मॉल, ये थोड़ा छोटा है कंपेयर करते हैं तो। और ये जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, और पैटर्न में पूरे 80 मार्क्स का न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर अलोकेशन ऑफ मार्क देखेंगे तो यूनिट 1 20 मार्क्स का है,
यूनिट 1 मिला के ये 16 और ये 4 ऐसा मिला के ये 20 मार्क्स होता है। यूनिट 2 जो है ये भी 20 मार्क्स होता है, 16 प्लस ये 4। यूनिट 3 जो है ये भी 20 मार्क्स का होता है, ये 16 प्लस 4। और यूनिट 4 जो है ये भी 20 मार्क्स का होता है। यानी टोटल जो है 80 मार्क्स का आपका जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है वो पेपर है। और उसमें 80 आपने अगर चाहा कि मुझे 80 मार्क्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, थ्योरी मेरी अच्छी नहीं है, थ्योरी मैंने पढ़ा नहीं है, थ्योरी मुझे लिखने में तकलीफ है, अगर आपको लगता है कि मेरा न्यूमेरिकल साइड जो है मैं प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, आई एम 100% श्योर कि मुझे ये प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स जो है ले सकते हैं। इन एंड ऑल जो है आपका सिलेबस इतना लेंदी नहीं है, भले ही सिचुएशन ऑनलाइन की है, लेकिन आपका 100 यू डोंट वरी अबाउट योर सिलेबस, आपका 100% जो है वो सिलेबस कवर होगा। हम आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, लेकिन आप श्योर रहे कि मुझे जो है वो मैक्सिमम, क्योंकि ये अकाउंटिंग और न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट है वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप स्कोर कर सकते हो। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है, हर यूनिट में एक एक 2-2 चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं है। आपने अगर चाहा तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। जस्ट यू डिसाइड कि मैंने सभी लेक्चर अटेंड करने हैं। आप सीक्वेंस ध्यान में रख लीजिए कि कौन सा वीडियो लेक्चर आपका पहला आया, कौन सा वीडियो लेक्चर आपका दूसरा आया, कौन सा तीसरा आया, कौन सा चौथा आया, क्योंकि ये सीक्वेंस में चलेगा। आपको पता है कि अकाउंटिंग में जो है एक सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है, और वो सीक्वेंशियली ही आपको वीडियोस देखने हैं, ठीक है। अगर कोई पार्ट अगर आपका मिस हो जाता है, अकाउंटिंग में अपन पढ़ते समय जब न्यूमेरिकल सम पढ़ते हैं तो उसमें जो है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मतलब पहले थोड़ा सा इजी, फिर थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम, फिर थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम, ये अपन इस सीक्वेंस में चलते हैं। पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर, हर एक का एक सीक्वेंस होता है। जैसे गेम खेलते हैं, गेम में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 होता है, वैसे ही अकाउंटिंग जब पढ़ते हैं या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा प्रॉब्लम, फिर थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन, फिर थोड़ा